Good morning, students. Let's continue our chapter, that is role of the government in health in social and political life. What is health? Let's revise. What is health? Health means ability to remain free of illness and injury. What is health? Health means ability to remain फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी. हेल्थ का अर्थ होता है, हेल्थ की मीनिंग है कि हमें जो बीमारियां और हमें जो बीमारियां होती हैं उनसे दूर या इंजरीज ये सब नहीं होंगी और अगर हम फिट रहते हैं तो डैट इज हेल्थ. इलनेस और इंजरी से बिल्कुल दूर रहना, दैट इज हेल्थ. रिमेन फ्री, हमारी बॉडी जब इलनेस और इंजरी से हमारी बॉडी फ्री रहती है तो दैट इज हेल्थ. अपार्ट फ्रॉम डिसीज देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. अपार्ट फ्रॉम डिसीज के अलावा भी काफ़ी और भी फैक्टर्स है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, लाइक पॉल्यूशन, वाटर, not getting adequate food, or have to live in cramped conditions. It also affects our health. And for example, look, if we get clean drinking water or a pollution, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. अगर ह्यूमन बीइंग्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए मिले और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले तो हम लोग सब हेल्दी रहेंगे, और हम लोग सब हेल्दी रहेंगे तो हमें इलनेस और इंजरीज भी नहीं होंगी. तो हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ illness and injuries. Next, healthcare in India. Yesterday we have studied healthcare in India, that India has the largest number of medical colleges in the world and approximately 15,000 new doctors qualify every year. 15,000 new doctors qualify every year. And we have read in 1950 number of hospitals in India is 2,717, and in 1991 there were 11,174 hospitals, and in 2000 the number grew to 18,218. 18,218. India gets a large number of medical tourists from many countries. इंडिया के पास large number of medical tourists है from many countries. Foreigners come for treatment in some of the hospitals in India. They come India and for their treatment in low income and that compare with the best in the world. मेडिकल टूरिस्ट मीन जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी कंट्री में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, और हमारे यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल्स में कि जब वो अपना इलाज कराने उसी हॉस्पिटल्स में आते हैं जिससे उनका जो उनकी कंट्री में उसी इलाज का जो उन्हें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही थी वो हमारी कंट्री में बहुत ही लो पेमेंट पे यहाँ पे वो ट्रीटमेंट होती है. तो वो यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आते हैं, तो डैट्स अ मेडिकल टूरिस्ट. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. And in second column we have read that
Most doctors settle in urban area. Most doctors settle in urban area. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. And people in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. जो रूरल एरियाज़ के पीपल हैं उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अर्बन एरिया में आने के लिए डॉक्टर के पास। और जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स रूरल एरियाज़ में अलॉट किए गए हैं वो बहुत ही उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। एंड अबाउट 5 लाख पीपल ट्यूबरक्लोसिस से 5 लाख पीपल हर साल 5 लाख पीपल्स की डेथ होती है हर साल पर ईयर, यू कैन से एवरी ईयर। दिस ईयर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस से ये अब तक ऐसा ही है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस एवरी ईयर, ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग। ये नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा है। We are not able to provide clean drinking water to all. We are not able to provide clean drinking water to all. And 21% of all communicable diseases are waterborne. जो 21% diseases हैं वो communicable diseases सिर्फ water से हो रही हैं. That is diarrhea, worms, hospitals, etc. And half of the children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. उन्हें न्यूट्रिशंस भी नहीं मिल रहे हैं और उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है। Worms in, let's start. India has a large number of doctors. We know India has the largest number of medical colleges and every year 15,000 new doctors qualify every year. And India has a large number of doctors, clinics and hospitals. India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public health care system. इंडिया के पास लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं और द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस। कंट्री के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड नॉलेज है इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए, रन करने के लिए द कंट्री हैज ए कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। दिस इज द सिस्टम। व्हाट इज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम? दिस इज द सिस्टम this is a system of hospitals and health centers run by the government. What is a public health care system? It is a system run by the government. It is a system of hospital. It is a system of hospital and healthcare system. Healthcare centers run by government. It is called public healthcare system. What is public healthcare system? It is a system of hospitals. It is a system of hospitals and health centers run by the government. Health centers run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population, scattered over hundreds of thousands of villages. Thousands of villages. Public health care center has the ability, उनके पास इतनी एबिलिटी है तो टू लुक आफ्टर द हेल्थ, वो टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, वो सबकी हेल्थ को देखती है या जब कोई हॉस्पिटल में आता है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देती है
and scatter over hundreds of thousands of villages. Means जो government है, जो health care center run by the government is a public health care system and it has the ability to look after the health of a large section of its population. उनके पास इतनी एबिलिटी है, इतनी ताकत है कि दैट से इतनी ताकत है कि वो लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, लार्ज सेक्शंस ऑफ इट्स पॉपुलेशन की हेल्थ को केयर करती है. स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस में ये हेल्थ केयर सिस्टम है और वो वहाँ पर हज़ारों गांव में फैली हुई है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को रोज़ के रोज़ उनकी केयर कर रही है. वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़े लेटर आगे. एंड moreover there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. हमारे जो मेडिकल साइंस है उसने काफ़ी एडवांसमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है, जिसके कारण न्यू टेक्नोलॉजीज and treatment procedures are available in our country, in the country. इस टेक्नोलॉजीज़ के कारण जो मेडिकल साइंस ने इतना एडवांसमेंट डेवलपमेंट किया, उसके कारण न्यू टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट प्रोसीजर अवेलेबल हो पाए हैं हमारी कंट्री में. हाउएवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट, सेकेंड कॉलम में जो हमने पॉइंट आउट किया था कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज एंड पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर. द नंबर ऑफ डॉक्टर्स with respect to population is much less in rural areas. We already discussed that. However, the second column points out how poor the health situation in our country is. इतनी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बाद इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज, ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के इतने ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के आर अवेलेबल है इन माई कंट्री, इन आर कंट्री, उसके बाद भी हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आर कंट्री इज. सेकेंड कॉलम ये बताता है कि कितनी पुअर सिचुएशन है हेल्थ की हमारी कंट्री में. With all the above positive development, we are not able to provide proper health care facilities to people. इतनी डेवलपमेंट, इतनी एडवांस मेडिकल साइंस ने डेवलपमेंट की है, न्यू टेक्नोलॉजीज, ट्रीटमेंट प्रोसीजर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम रन बाय द गवर्नमेंट. इतनी डेवलपमेंट के बाद भी हमारे वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल. उसके बाद भी हम पीपल्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल. दिस इज़ द पैराडॉक्स. दिस इज़ द पैराडॉक्स. इससे समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेटरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट. हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं मिलता, जिसके कारण पैराडॉक्स, जिसके कारण हमें काफ़ी गुस्सा आ जाती है कि इतनी डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट गवर्नमेंट को हमेशा हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए. गवर्नमेंट सिर्फ इन डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर ओनली. आवर कंट्री हैज़ द मनी. आवर कंट्री हैज़ द मनी. हमारी कंट्री के पास मनी है, knowledge, technologies, people with experience, but cannot make the necessary health care available to all. Our country has the money. हमारी कंट्री के पास मनी है. We have knowledge also and people with experience, but cannot make the necessary health care available to all. Money in our country has the money, knowledge and people with experience, but
उसके बाद भी कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, फिर उसके बाद भी हेल्थ केयर सिस्टम सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। इस चैप्टर में हम कुछ रीजंस देखेंगे वाई ऐसा क्यों है कि सबके लिए नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है। एंड लुक एट दिस पिक्चर, पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक दिस वन। अभी भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट को एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है अपनी चांस के लिए। Let's take one story, the story of Hakim Sheikh. The story of Hakim Sheikh. Hakim Sheikh was a member of the Paschim Bangal Khet Mazdoor Samiti. हाशिम शेख मेंबर थे पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के, मीन्स PBKMS एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं पीपल। वेस्ट बंगाल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है एग्रीकल्चर में जो लेबर्स वर्क करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं। वन इवनिंग इन 1992 he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. एक इवनिंग 1992 में ही चलती ट्रेन से ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। जब ट्रेन चल रही थी, चलती ट्रेन से अचानक वो नीचे गिर पड़े एंड सफर्ड हेड इंजरी, और उन्हें बहुत सर में उनके हेड पे बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई, उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, he was in a very serious condition and needed immediate treatment. वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन में थे और उनके ब्रेन में चोट लगने के कारण, हेड में इंजरीज के कारण उनकी जो हेल्थ थी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और उन्हें तुरंत ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। He was taken to a government hospital in Kolkata. He was taken to a government hospital in Calcutta, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. उन्हें तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाया गया कोलकाता के, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने तुरंत उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया एडमिट करने से, बिकॉज उनके पास कोई भी स्पेयर बेड नहीं था, कोई भी एक्स्ट्रा बेड नहीं था, कोई भी खाली बेड अवेलेबल नहीं था। एंड अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट, और जो दूसरे हॉस्पिटल्स थे उनके पास कोई डू नॉट हैव द फैसिलिटी, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट, उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। इन दिस वे ही स्पेंट 14 hours in a critical state. In this way, इसी कंडीशन में उनकी हेड इंजरी के साथ उन्होंने 14 hours इन अ क्रिटिकल स्टेट में अपना टाइम स्पेंड किया एंड वॉज टेकन टू 8 different गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। 14 hours में 14 घंटे उन्होंने ऐसे ही अपना एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे, ऐसे उन्होंने 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया गया, बट सारे हॉस्पिटल्स में, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको एडमिट करने से सबने मना कर दिया। फाइनली
he was admitted in a private hospital. Finally, जब पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने रिफ्यूज़ कर दिया उन्हें एडमिट करने से, तो उन्हें ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट किया जाने लगा उनकी हेड इंजरीज को. ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, उन्होंने लॉट ऑफ मनी स्पेंड किया अपनी ट्रीटमेंट पे. एंग्री एंड अपसेट ओवर द indifferent attitude of all the government hospital that refused to admit him. बहुत ही जब उनका इलाज हो गया, जब वो ठीक हो गए, तो एंग्री गुस्से में और बहुत उदासी में उनको बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने जब देखा कि जो डिफरेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनके पास ना स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थे, ना स्पेयर बेड था, ना फैसिलिटीज़ थी, और सब ने एडमिट करने से रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, सब ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया. तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और निराश थे, वो उदास थे. हकीम शेख ने पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति फाइल अ केस इन द कोर्ट, और हकीम शेख और वो जिस समिति से जुड़े हुए थे पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के साथ मिलकर उन्होंने कोर्ट में फाइल किया केस को. लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी. नेक्स्ट स्टोरी, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर. लेट्स स्टार्ट अनदर स्टोरी. हकीम शेख की स्टोरी अभी हमने रीड की. दैट वन इवनिंग इन 1992 he accidentally fell off a running train and suffered head injury. He was taken to a government hospital in Calcutta, but they refused to admit him because they do not have a spare bed, and the specialized doctors did not have the facility or the specialized doctor, and was taken eight different government hospitals, but none of them admitted him. उन्हें किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, हेड इंजरीज थी उन्हें, एंड लास्ट उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ, एंड ही स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट. हकीम शेख एंड PBKMS पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने मिलकर कोर्ट में फाइल किया केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. द कॉस्ट ऑफ अ क्योर. एक इलाज का कितना खर्च होता है. यू कैन सी द कॉस्ट ऑफ अ क्योर करने के लिए कितना ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है. हकीम शेख ने जब प्राइवेट में अपना इलाज कराया हेड इंजरी का, जो वो ट्रेन से गिर गए थे, उन्हें काफ़ी चोट आई थी उनके हेड में, तो जब उन्होंने इलाज कराया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन्हें काफ़ी पेमेंट देनी पड़ी. एंड लेट्स स्टार्ट अनदर स्टोरी. अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स. अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स. वाई रंजन कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, और अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट. अमन और रंजन आर गुड फ्रेंड, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. वाइल रंजन गुड फैमिली से बिलोंग करता था, और जो अमन था, अमन के जो पेरेंट्स थे उनको स्ट्रगल करना पड़ता था अपने मेक एंड्स मीट, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. हाय अमन, गुड टू सी यू बैक. हाउ हैव यू बीन? Ranjan belongs to a good family, Aman belongs to a poor family. While Aman's parents have to struggle to meet their ends. Hi Aman, Ranjan ने कहा. Hi Aman, good to see you back. बहुत दिनों बाद मिले हो, मुझे अच्छा लगा. How have you been? तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद मैंने तुमको देखा, मुझे अच्छा लगा. तुम कैसे हो?
how have you been? Then I had वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। अमन ने कहा कि मुझे वायरल फीवर हो गया था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओह। देन रंजन ने कहा, रंजन ऑल्सो सेड, ओह मी टू, मुझे भी वायरल फीवर हो गया था एंड आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, और मैं इसी मंडे से स्कूल आ रहा हूँ, और मैं इसी मंडे से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है। रंजन ने कहा, अमन ने कहा मुझे वायरल फीवर हो गया था इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ रहा था। और फिर रंजन ने कहा मुझे भी हो गया था और मैं इसी मंडे से स्कूल आ रहा हूँ। My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. और मेरे पापा मुझे एक हॉस्पिटल में ले गए थे। मेरे पापा ने मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए वो एक नए हॉस्पिटल में लेके गए थे, जो किंग्सवे है, हॉस्पिटल में लेके गए थे। किंग्सवे के नए हॉस्पिटल में वो मुझे दिखाने के लिए लेके गए थे और वो वहाँ पर बहुत ही अच्छा था, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा था। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, बिल्डिंग बहुत चमचमा रही थी। You can say so posh, looking so beautiful. It thought it was a 5-star hotel. I thought, मुझे लगा ये कोई 5-star होटल है। Daddy said that was because, ये इसलिए तुम्हें लगा क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है with the best of facility। यहाँ ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। रंजन ने अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया कि उसे किंग्सवे के हॉस्पिटल में उसके पापा लेके गए और वहाँ पे वो बिल्डिंग देख के सोच रहा था ये तो कोई होटल है, बट उसके पापा ने कहा ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विद बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। डैडी हैड टू पे, पापा ने 500 रुपीज़ रिसेप्शन के काउंटर में जमा करवाया। बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर, डॉक्टर के मिलने से पहले ही हमें 500 रुपीज़ रिसेप्शन को देना पड़ा। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग, वहाँ पे काफ़ी अच्छा म्यूजिक चल रहा था और एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनिंग, सारी चीज़ें बहुत क्लीन थी और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रही थी। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट, डॉक्टर ने काफ़ी टेस्ट लिखे, बट एवरीवन वॉज सो फ्रेंडली, वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। जो वहाँ पे लेडी थी जो मेरा ब्लड टेस्ट कर रही थी, उसने मुझे ब्लड टेस्ट करते समय बहुत सारे जोक्स सुनाए जिसके कारण मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। I forgot to feel the pain. And have you heard the one about Batman on reality TV? उन लेडी ने कहा क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? After the test result, जब टेस्ट रिजल्ट आए, we went back to the doctor, हम दोबारा डॉक्टर से मिलने गए। He looked through them, उसने रिपोर्ट देखी and said everything was fine, उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें ठीक हैं, everything, and I only had a viral fever, उन्होंने बताया कि सब ठीक है, बस इन्हें एक वायरल फीवर है। He prescribed some medicines and rest, डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया कि कुछ मेडिसिन और रेस्ट करने के लिए कहा। And so young man, this pink pill should be taken 3 times a day, और so young man, ये जो पिंक पिल्स हैं, जो पिंक दवा है, वो आपको 3 टाइम्स लेना है अ डे में 3 टाइम। एंड द वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले आपको वाइट टैबलेट खाना है। दैट फॉर द बॉडी एच, दैट फॉर द बॉडी पेन, जो बॉडी में पेन होगा। दिस वन इज अ सिरप, ये एक सिरप है। डोंट वरी, इट्स अ टेस्टी, ये सिरप बहुत टेस्टी है।
You see, I have been dying to tell you all about it. तुम्हें पता है मैं तुम्हें ये बताने के लिए कितना मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, ये सारी चीज़ें तुम्हें बताने के लिए. But what about you? तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम which hospital did you go to? तुम किस हॉस्पिटल में गए थे? अमन ने कहा, अमन, It was not as nice as yours at all. वो तुम्हारी, जैसे तुमने डिस्क्रिप्शन अपने हॉस्पिटल का दिया, वैसे वो हॉस्पिटल ऐसा नाइस नहीं था. At first, पहला, अब्बा did not want to take me because he said it would take too much time. जो अब्बा थे वो मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं थे. उन्होंने कहा वहाँ पे बहुत समय, वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा. And it really did. और सच में वहाँ पे बहुत टाइम लगा. We went to a big government hospital. We had to wait in a long queue at the OPD counter. और हमें OPD काउंटर के बाहर एक लंबी सी लाइन में बहुत देर तक वेट करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा. I was feeling so sick that I had to lean on Abba all the time. मैं इतना बीमार था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मतलब पूरे टाइम ही मैं अपने अब्बा के सहारे ही वहाँ पर खड़ा रहा. उनके लीन मतलब उनसे चिपक के खड़ा रहना, मतलब उनका सहारा लेके खड़ा रहना. When our turn came, जैसे ही हमारा टर्न आया, the doctor examined me. डॉक्टर ने हमें देखा and asked for a blood test. और डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट कराने के लिए. Then we had to go and stand in another long queue. उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए हम फिर से एक लंबी लाइन में हमें खड़ा होना पड़ा. People are crowding around in the testing room too. People are crowding मतलब इतनी भीड़ थी उस टेस्टिंग रूम में, वहाँ पे सब लोगों ने भीड़ लगा रखी थी. We got the test result after 3 days. After 3 days हमें टेस्ट रिजल्ट मिला. And went back to the hospital. दोबारा हम हॉस्पिटल गए. There was a different doctor that day. और जब हम 3 days after 3 days बाद गए तो वहाँ पे एक डिफरेंट डॉक्टर थे. Show me his OPD card. डॉक्टर ने कहा show me his OPD card and test results quickly please. जल्दी से OPD कार्ड शो करिए और जो उसका टेस्ट रिजल्ट है, ब्लड टेस्ट रिजल्ट है, वो शो करिए. He seems to be suffering from about a viral fever. डॉक्टर ने कहा कि इसे वायरल फीवर है. Nothing to worry about. इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. Nothing to worry. All he needs is this one fever reducing medicine. All he needs, बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस और कुछ नहीं. उसे सिर्फ एक बुखार फीवर रिड्यूस करने की टैबलेट देनी है और कुछ भी. My hospital was nice, but they gave me many medicine. The whole thing cost quite a lot. मेरा हॉस्पिटल नाइस था. Who said? रंजन said that my hospital was nice, but they gave me many medicine. But उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी और जो होल मेडिसिन का कॉस्ट था वो quite a lot था, बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट था. ओह, माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच. लेकिन मेरे ट्रीटमेंट में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी. इट मीन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है उनमें कॉस्ट बहुत लो कॉस्ट में आपका इलाज होता है, ट्रीटमेंट. एंड इन रंजन हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत हाईली कॉस्ट दे चार्ज. लेट्स public and private health care services. Public and private health care services. The next topic.
Let's start our next topic, public and private health care services. From the above story, you must have understood that we can roughly divide it by various healthcare facilities in two categories. ऊपर की स्टोरी जब अभी आपने अमन और रंजन की स्टोरी एंड हकीम शेख की स्टोरी आपने रीड की, तो हमने हेल्थ केयर को टू सर्विसेज में डिवाइड किया है, टू फैसिलिटीज़ में डिवाइड किया है, दैट इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड नेक्स्ट इज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में अभी आपने रीड किया कि अमन की जो कॉस्ट लगी उसकी ट्रीटमेंट में बहुत लो कॉस्ट थी, और जो रंजन की प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में कॉस्ट लगी मेडिसिन की ट्रीटमेंट की बहुत ही हाई कॉस्ट थी। बट इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर या प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में आपको क्यू में स्टैंड नहीं करना पड़ता, बट इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आपको क्यू में स्टैंड करना पड़ता है। इन प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में आपको हर चीज़ नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है। बट इन हाकिम शेख के केस में जब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में ले जाया गया तो वहाँ पे किसी ने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम ने उनको एडमिट नहीं किया, दैट उन्होंने कहा कि कोई भी बेड स्पेयर नहीं है। Let's start next. What is public health services? The public health services is a chain of health centers and hospitals run by the government. And hospitals run by the government. Public health services. The public health services is a chain of health centers and hospitals run by the government. जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं वो रन बाय द गवर्नमेंट होते हैं। जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं आपके विलेजेस, रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो रन बाय द गवर्नमेंट होते हैं। एंड दे आर लिंक टुगेदर so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illness to special services. जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मीन्स रूरल्स में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं एंड इन अर्बन एरियाज में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एंड दे कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल द काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। वहाँ पे आपको ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट मिलता है, दैट इज फ्रॉम कॉमन इलनेस से स्मॉल फीवर से लेकर स्पेशल सर्विसेज तक आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल सर्विसेज एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। और अगर हम रूरल एरिया की बात करें और एट द विलेज लेवल की बात करें, देयर आर वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स रहते हैं वेयर देयर इज़ यूजुअली एक नर्स रहती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर रहता है। अगर हम विलेज की बात करें तो वहाँ पे ओनली एक नर्स रहती है और एक वर्कर अवेलेबल रहता है ऑल द टाइम। दे आर ट्रेन इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस। उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो कॉमन इलनेस को डील करें एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सच उन्हें सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और वे जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जो नर्स है और जो वर्कर है उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो अंडर दे ट्रेन इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस, विलेज हेल्थ वर्कर एंड वर्क अंडर द सुपरविजन। और उसके बाद उन्हें एक डॉक्टर के सुपरविजन में रखा जाता है एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
एट द लेवल ऑफ विलेज की बात करें तो वहाँ पे एक नर्स रहती है और एक वर्कर रहता है। विलेज हेल्थ वर्कर रहता है और उन्हें ट्रेन किया जाता है कॉमन इलनेस का, बताया जाता है, डील करते हैं वो कॉमन इलनेस से, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग किसके अंडर में उन्हें मिलती है? डॉक्टर के अंडर में, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर होते हैं। सच सेंटर्स कवर्स मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया। ये जो सेंटर्स होते हैं वो काफ़ी विलेजेस को कवर करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उनमें एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अवेलेबल होता है, दैट वाज सुपरवाइजेस ऑल द हेल्थ सेंटर। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो सुपरवाइज करता है ऑल दी हेल्थ सेंटर्स को। जो रूरल एरियाज में पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको वो सुपरविजन करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो लार्ज सिटीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं। सच एज the one where Aman was taken. Such hospitals, large cities, such hospitals like one where Aman was taken, जहाँ अमन को लेके जाया गया था, and also specialized government hospitals such as one in Hakim Sheikh Store, and also specialized government जहाँ अमन को लेके जाया गया था डॉक्टर, और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी थे जहाँ पे हाकिम शेख की स्टोरी में, हाकिम स्टोरी में हमने डिस्क्राइब किया स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। बट द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन। जो हेल्थ सर्विसेज हैं इनको हम पब्लिक कहते हैं, बहुत रीजन है इसके लिए। वाई हम उन्हें पब्लिक क्यों कहते हैं? इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। उनका जो कमिटमेंट है, जो उनका जो हॉस्पिटल्स का कमिटमेंट है कि प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। जो हेल्थ केयर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनका कमिटमेंट है, उन्होंने कमिट किया है कि हम हेल्थ केयर सर्विस सब सिटीजन्स को देंगे। The government has established these hospitals and health centers, और गवर्नमेंट ने सिर्फ पीपल्स की फैसिलिटीज़ के लिए ही हेल्थ सेंटर और हेल्थ हॉस्पिटल को स्टैब्लिश किया है। Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes। और जो रिसोर्सेज और जो फैसिलिटीज़ इस हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती है, इस हॉस्पिटल्स में जो प्रोवाइड की जाती है, वो जो मनी ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी, पब्लिक से ही वो मनी ऑब्टेन किया जाता है। और किस तरह? पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। टैक्सेस के रूप में हम वो जो कैश होता है वो गवर्नमेंट को ही देते हैं, और गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए पब्लिक हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल को रन करती है, उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। एंड जो सच फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है आर मेंट फॉर एवरीवन, वो सबके लिए बना है। One of the most important aspects of public health system is that it is meant to provide quality health care services, either free or at low cost, so that even the poor can seek treatment. जो most important aspect है, the most important aspect of the public health system का important characteristic है कि that it means to provide quality health care services, means to provide quality health care services, to provide quality health care services, to provide quality health care services either free or at a low cost.
क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एट फ्री में प्रोवाइड करना या लो कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है पीपल्स ऑफ द कंट्री। एंड वन मोर थिंग, सो दैट लो कॉस्ट में और फ्री में प्रोवाइड किया जाता है सो दैट जो पुअर पीपल्स हैं उन्हें भी ट्रीटमेंट मिल पाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ public health is to take action to prevent the spread of diseases। जो another functions है public health का कि against action लेना to prevent the spread, जो spread diseases हो रहे हैं tuberculosis, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, चिकनगुनिया etc. उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना। This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective। ये तभी पॉसिबल है जब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। अगर पीपल पार्टिसिपेट करें एक्टिवली इन गवर्नमेंट वर्क तो गवर्नमेंट हमारे लिए काफ़ी प्रोग्राम्स लेकर आती है और गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। For example, let's take an example. When taking up a companion to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. Example, जितने भी मॉस्किटोज हैं do not breed in water coolers। आपको देखना होगा कि ये इनकी जो ब्रीडिंग है वो वाटर कूलर्स में ना हो। रूफ टॉप्स में जो छत पे पानी जमा हो जाता है, जो वाटर कूलर्स में पानी जमा हो जाता है, उसके कारण इनकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है। मॉस्किटोज मच्छर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेस इन द एरिया। और ये सारी चीज़ उस एरिया में जितने भी हाउसेस हैं सबको क्लीन करना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट का सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करेगी आपके सपोर्ट में। और गवर्नमेंट इसे कंपेनियन चला के लोगों को बताती है कि आप अपने वाटर कूलर छत में पानी को इकट्ठा ना होने दें, और अगर इकट्ठा होता है तो वहाँ पे काफ़ी मच्छर होंगे जिससे कि आपको मलेरिया हो सकता है। Recall the case of Hakim Sheikh। Let's recall the case of Hakim Sheikh that Hakim Sheikh को वो गिर गए थे चलती ट्रेन से, fell and after that head injuries हो गई थी and when he went to the government hospitals there is no spare, मतलब अवेलेबल नहीं था स्पेयर बेड और 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उन्हें जाना पड़ा बट nobody treat him और सबने कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बनाए। दैट इज लेट्स वुड यू लाइक, फिर हकीम शेख ने अपनी समिति से मिलकर केस किया कोर्ट में। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? क्या तुम्हें जानना है कि कोर्ट ने किसके अगेंस्ट में अपना रिजल्ट दिया था, किसके अगेंस्ट में बातें कही, या कोर्ट ने क्या कहा इस केस को लेकर? लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज या प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। गवर्नमेंट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे लॉज में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में, इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की, दैट टू एंश्योर दी वेलफेयर ऑफ, ये एंश्योर करना वेलफेयर ऑफ द पीपल, देखना, उनकी देखभाल करना और उन्हें प्रोवाइड करना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, या
to provide quality health care services to people. The government must safeguard the right to life of every person. The government must, government को every person has a right. कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ का अधिकार हमें दिया गया है और गवर्नमेंट को सेफगार्ड बनाना है राइट टू लाइफ के लिए, और गवर्नमेंट को उसको सेफगार्ड करना है, इनकी केयर करना है, प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है. राइट टू लाइफ इज अ एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है. एंड द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख had to face could have cost him his life. कोर्ट ने कहा कि जो हाकिम शेख ने 14 आवर्स डिफ़िकल्टी के साथ बिताए और 8 गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने उसे मना कर दिया, इसके कारण उसकी लाइफ भी जा सकती थी, उसकी डेथ भी हो सकती थी. यू कैन से कॉस्ट हिम हिज लाइफ. इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. अगर कोई भी हॉस्पिटल आपको इफ़ अ हॉस्पिटल प्रोवाइड टाइमली आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा है या टाइमली आपको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ना दे पाए, तो इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन. इट मीन्स जो राइट टू लाइफ या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो हमें नहीं मिल पा रही है, इसकी सुरक्षा गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है. गवर्नमेंट एक सेफ गार्ड नहीं प्रोवाइड कर पा रही है हमें. सो द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट it was the duty of the government. The court also said that कोर्ट ने ये कहा कि it was the duty of the government, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है to provide the necessary health services. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि उन्हें प्रोवाइड करना था क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज या प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज टू द पीपल, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन. और जो नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज में है उसमें इंक्लूड है कि आपको एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाए, एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स भी दिए जाए. हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी, और जो हॉस्पिटल्स हैं एंड जो मेडिकल स्टाफ्स हैं मस्ट fulfill their duty of providing the necessary treatment. हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेस हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और वेल ट्रीटमेंट करना चाहिए पीपल्स का. एंड नेसेसरी प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रीटमेंट. हाकिम शेख वॉज denied treatment at various government hospitals. और हाकिम शेख के केस में हमने देखा कि all the government hospitals denied, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने डिनाई कर दिया ट्रीटमेंट करने से. and therefore the government asked the state government, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे that to give him the money that he had spent on his treatment in private hospital. गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप इनके पूरे कॉस्ट को पे करेंगे जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपना ट्रीटमेंट कराया, जो उनको वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ी, आपको वो पूरी पेमेंट करनी है टू हाकिम Sheikh. And let's start private health facilities. Private health
facilities. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. In public health facilities, remember one thing, right to life. right to life है, हमें right to life दिया गया है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से कि हमें ये पूरा हक है कि हम अपनी लाइफ के लिए अपने राइट टू लाइफ एवरी पर्सन प्रोवाइड सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है और कहा गया है कि पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको ये ट्रीटमेंट दी जाएगी.